toward your resolve. I couldn't also help but think that India's rocket may have reached Mars in less time than it took to go cross town in New York this past week. But that's the problem here. Let me begin, sir, with a question on begin with the economics on trade, which, as you know, is often cited as one of the principal locomotives or engines of economic growth. Yet India, since you became Prime Minister, decided not to go ahead and ratify the so-called Trade Facilitation Agreement. And it's also India is, for the moment, outside both APEC and the TPP negotiations. So could you say something about your view of trade and whether the domestic politics of India will allow you to pursue a liberal trade agenda? जहाँ तक ट्रेड फैसिलिटेशन का सवाल है, हम 101% एग्री है, तो उसमें कोई दुविधा का विषय नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम आज ग्लोबल इकोनॉमी का युग है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी का युग है तो हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैसिलिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड की बनानी पड़ेगी। चल रहा है शायद। ओके, आप वही रखोगे, बोल दें, उसके बाद आप ट्रांसलेट करोगे। और इसलिए हम भी मानते हैं कि विश्व के साथ हमको काम करना है। मेरे लिए पॉलिटिक्स इज नॉट अ इश्यू एट ऑल। मैं लोकरंजक राजनीति वाला इंसान नहीं हूं और न ही लोकरंजक अर्थनीति वाला इंसान हूं, लेकिन मेरे देश में गरीब लोग हैं। गरीबों को भूखा रख करके हम नहीं चल सकते और इसलिए फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, ये मेरे देश का आग्रह है। ये पहले कर लो, वो देखा जाएगा तो गरीबों के साथ अन्याय होगा और दुनिया को कोई तकलीफ नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी के लिए हम पॉजिटिव स्टैंड ले लें। You got, do we have a microphone for this gentleman here? Right here. It's okay. No, we got one right. And just to sort of get the gist, and then I think we'll have simultaneous from here on. Okay. It's on. It's on. All right. Thank you. India is not at all opposed to the trade facilitation agreement of the WTO. We are absolutely clear in our mind with regard to our commitment to the WTO agreement on the trade facilitation. We also recognize very well that we have to work with the international community and the rest of the world on this agreement. I am personally against following populist policies or even populist economic approaches. But one must recognize that India has a large population of poor people whose requirements of food security, whose requirements of food availability cannot be ignored. As a result, I have always maintained, and India has said, that the agreement on the food security and the trade facilitation has to go hand in hand and together. It cannot be that you do this first and we will see the other later on. So we are very much committed to the trade facilitation, but we have to ensure simultaneous progress on the food security front also. I have one other question I want to raise in the economic realm, which deals with electricity. As I understand it, several hundred million Indians do not have adequate access to electricity. And the question a lot of people are asking is, how can these people come to enjoy a middle-class life? And in the process, not set in motion economics that have a clearly negative impact on climate change, given the amount of carbon that would be emitted. ये बात सही है कि हमारे लिए आज बिजली जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बिजली लग्जरी नहीं है, ये जीवन की रिक्वायरमेंट बन गई है।
और हम 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अपने एजेंडा में कहा है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में हिंदुस्तान के हर गांव में 24/7 पावर सप्लाई करेंगे और ये संभव है। हमने जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर में काम किया उसमें भी हम क्लीन एनर्जी पे बल दे रहे हैं। हम सोलार के लिए रूफटॉप पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और इसलिए अब हिंदुस्तान में बिजली का वो संकट रहेगा ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, शायद आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, मैंने पहले ही कहा कि मैं गुजरात में जब था, अल गौर ने एक किताब लिखी है इनकन्वीनियंट ट्रूथ। मैंने एक किताब लिखी है कन्वीनियंट एक्शन, और वो मैंने एनवायरमेंट पे लिखी है। और जो किया जा सकता है, यानी पॉलिटिकल विल से एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कैसे किया जा सकता है, वो मैंने उसमें सिद्ध करके दिखाया है। और इसलिए डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट ये दुश्मन है, ये जो सोचा जा रहा है वो गलत है। हम दोनों को केयरफुली स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ा सकते हैं। They are doing the transition. Sir, India is, by many counts, the second largest Muslim country in the world in terms of population. Only Indonesia is larger. And as you know from your time here, Americans are obviously seized with the challenge posed by the group ISIS. So one of the questions that's come up is whether you're worried that the unrest sweeping large parts of the Arab and Muslim worlds might spread to India. And to the extent that you are, what are your plans to reduce your country's susceptibility to radicalization and even violence? जहां तक भारत का सवाल है, भारत में किसी भी संप्रदाय व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन एक मूल फिलॉसफी से वो ड्राइव करता है। और भारत की फिलॉसफी का प्रतीक है भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी। जहां अहिंसा, ये हमारे लोगों के स्वभाव में है। आपने देखा होगा कि इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में चली है, टेररिज्म के कारण हम परेशान हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहां एक्सपोर्टेड है। किसी ने हमारे यहां एक्सपोर्ट किया है, होम ग्रोन नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, उसके विषय में मुझे कभी एक बार CNN ने पूछा था कि अल कायदा का ये चल रहा है तो आपको क्या होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान अल कायदा को फेल कर देगा। We hope so. Let me turn to foreign policy for a minute, and then I'll open it up, which is for much of the Cold War, India's articulated foreign policy was one of non-alignment, and there was always the reference to the 5 principles of coexistence. But as you know, and as everybody knows, the world is no longer aligned with the end of the Cold War. So what is India's compass? What is India's intellectual approach to this post-Cold War world when it comes to its foreign policy? देखिए, हम 18th और 19th सेंचुरी की तरफ जाएं तो वो युग पूरा संघर्ष का युग था। हर शासक, जो भी उसका दायरा होगा, वो अपने विस्तार के लिए लड़ाई लड़ता था। पूरे 2 शताब्दी का इतिहास संघर्ष का इतिहास है, लड़ने का इतिहास है। बाद में आया इतिहास, समय जो आया वो गुट का इतिहास आया। एक गुट ये तो दूसरा गुट ये आया। अब वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 21वीं सदी गुट से चलने वाली नहीं, और एक प्रकार से इरेलेवेंट हो गए गुट। आज हर देश इंटरडिपेंडेंट है। विश्व के सब देश को, सब देशों की जरूरत हो, ऐसा युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इसलिए अब गुट या समूहों के द्वारा नहीं, सह अस्तित्व के विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए एक नई फिलॉसफी, हम चाहे या न चाहे, ऑलरेडी प्रैक्टिकली जगह ले चुकी है। सभी देश
मान लीजिए जो लोग G20 में होंगे वही G4 में भी होंगे, जो G7 में होंगे वही G9 में होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा समूह नहीं बन पा रहा है, हर कोई हर जगह पर भी जगह बना रहा है। तो जगत पूरा बदल चुका है। हम ये पुराने समूहों की कल्पना लेकर के चलते थे, उसमें से बाहर निकल जाएं और ये हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट करें। जगत बहुत तेजी से जुड़ रहा है, टेक्नोलॉजी ने जोड़ा है, हमारी अपनी आवश्यकताओं ने जोड़ा है और हमारी युवा पीढ़ी ने एक नए बदलाव को स्वीकार कर लिया है और इसलिए हम पुराने सारे पैरामीटर्स अब काम नहीं चलेंगे। After this meeting here in New York, you're heading to Washington. You'll meet with the president tonight. You've got meetings tomorrow. I expect one word you're going to hear again and again and again is the word partnership to describe the U.S.-Indian relationship. So my question for you is whether you are comfortable with that word, and to the extent that you are or not, what is your definition of partnership when it comes to India and the United States? पहली बात है कि हर चीज में कंफर्ट नहीं होने की जरूरत होती नहीं है। आप पति पत्नी में भी 100% कंफर्ट नहीं होता है। We could leave your answer there. लेकिन उसके बावजूद भी लंबे समय तक एक बाइंडिंग रहता है। कुछ चीजें हैं जो भारत और अमेरिका को जोड़ती हैं और वो है सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र, ओपननेस। सोसाइटी में जो ओपननेस है वो दोनों के संस्कारों में है। तीसरी बात, अब देखिए अमेरिका, सारी दुनिया अमेरिका में आकर के बसी है। ये अमेरिका के कैरेक्टर का हिस्सा है कि सबको एसिमिलेट करते हैं और इंडियन सारी दुनिया में बसा हुआ है, तो सारी दुनिया को एसिमिलेट करने की ताकत एक इंडियन में है। ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक दूसरों को जोड़ते हैं। और तीसरी बात है आर्थिक बात, वो लेन देन का विषय रहता है, वो व्यापारिक संबंध रहते हैं, कभी आपके फायदे में कभी हमारे फायदे में, वो गिव एंड टेक फार्मूला के आधार पर चलते हैं। लेकिन दोनों देशों के लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा वो हम लोगों को जोड़ के रखती है। We started a few minutes late, so if it's okay, we'll go on a few minutes. And one of the traditions at the Council on Foreign Relations, again, you were extraordinarily generous about this organization, is our members get a chance to ask a few questions. So why don't I turn to them? These questions will be tougher than the one from me. Oh, I should warn you. Ken Juster, I saw you had. And people just wait for the microphone and keep it as short as possible and introduce themselves. Hi, Ken Juster with the firm Warburg Pincus. I just wanted to follow up on Richard's last question on the partnership between the United States and India. You've described what features we have in common, but do you have another word I think you'll hear tomorrow is strategic partnership, and do you have a vision for that partnership and how the United States and India can work together on global issues and regional issues? देखिए, अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर के शांति की दिशा में प्रयास करना वो एक विषय है, लेकिन आर्थिक विकास को लेकर के अभी हम जब मिलने वाले हैं तो उस विषय को भी हम जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो रिसर्च होती है उस रिसर्च का उपयोग हो सकता है कि अन्य देशों के साथ मिलकर, विशेष करके भारत के साथ मिलकर के, जहां पर उस रिसर्च को धरती पर उतारने में प्रोडक्टिविटी की संभावनाएं ज्यादा है और यूटिलिटी ज्यादा है, तो हम उस क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। दुनिया की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण वो सिर्फ उपयोगितावाद पर नहीं, मैं आज भी मानता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका के हित के लिए अमेरिका के संबंध और भारत के हित के लिए भारत के संबंध, उसके बजाय अमेरिका और भारत मिलकर के दुनिया के हित में हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हमारी बेसलाइन बनती है तो हम दोनों की ताकत विश्व को बहुत काम आ सकती है। और मैं जब मिस्टर कैरी मुझे मिले थे
तो मैंने इस विषय को बड़े विस्तार से उनके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। Is Afghanistan one of the areas you think we can work on together in a productive way? Is Afghanistan one of the challenges we can work on? अफगानिस्तान एक तो बड़ा एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान एक्चुअली एग्जाम्पल है। भारत के बहुत लोग अफगानिस्तान में रहते हैं और एक प्रकार से अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्थिर लोकतांत्रिक तरीके से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, ये हम भी चाहते हैं। अमेरिका ने वहां जो सिक्योरिटी के मेजर्स में मदद की, उसके कारण एक स्टेबिलिटी मिली। आज भी हमारी कोशिश ये है, और जो अभी चुनाव होने के बाद नई सरकार वहां प्रस्थापित हुई है, उस सरकार में भी तालमेल करने में भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर के बहुत एक सद्भावना अपनी प्रकट करते रहे हैं और एक अच्छे नतीजे की तरफ अफगानिस्तान गया है। लेकिन हमने अमेरिका से यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो विड्रॉल वाला, डिफेंस का विड्रॉल का विषय है, इराक जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतना तेजी से विड्रॉ करने के बाद इराक का जो हाल हुआ, अफगानिस्तान में विड्रॉल की प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए। अफगानिस्तान को अपने बल पर खड़े होने देना चाहिए, तभी जाकर के तालिबान को उभरने से वो रोक पाएगा। और इसलिए अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर के अफगानिस्तान में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। Professor Cohen, who's one of this country's leading China experts. Mr. Prime Minister, you set an admirable example for the world in June when you accepted the arbitration decision of a Law of the Sea tribunal, even though it awarded most of the Bay of Bengal that was in dispute to Bangladesh. Would you be willing to submit your land border problems with China to arbitration or adjudication? The Chinese government has thus far rejected the use of arbitration or adjudication. The Philippines is now putting China to the test. Would India be willing to do something similar? चीन और भारत दोनों सक्षम है बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। चीन और भारत डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कोई अलग आर्बिट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी भी चीन के साथ व्यक्तिगत भी मेरे संबंध अच्छे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति अभी भी आए थे और बॉर्डर डिस्प्यूट को हम मानते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट है और कई बातों में हमने चर्चा की है। वो चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि हम मिलकर के बहुत ही जल्द इस समाधान को करेंगे, इसलिए हमें कोई आर्बिट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, ma'am. Hi, thank you. It's on. It's on. Hi, I'm Tara Lawson-Reamer, formerly a fellow here at the Council and now legal and campaign director with Avaz, a global civic organization with over 38 million members worldwide. You've often said there's no compromise on the dignity of women. So given the enormous potential of Indian women and the challenges they face every day, what is your vision for a made-in-India approach to ending gender-based violence and inequality? Is your government exploring the establishment of a prime ministerial task force or any other concrete milestones to be a global leader on this issue that's so fundamental to the lives of so many? This may also be a good moment to introduce both your foreign minister and your foreign secretary. आपका बहुत मैं आभारी हूं कि आपने जो मैंने इनिशिएटिव लिए उसके विषय में जो अच्छे शब्द सुनाए। दुनिया के कई भाग ऐसे हैं कि जहां देश का प्रमुख महिला नहीं बन पाता है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट महिला को बनना है तो आज भी कई देशों में बहुत दिक्कत है, लेकिन भारत और एशिया के देश ऐसे हैं
कि जहां महिलाएं प्रधानमंत्री रही है, और आज मेरे फॉरेन मिनिस्टर भी महिला है, सुषमा स्वराज यहाँ बैठी है, मेरी फॉरेन सेक्रेटरी भी महिला है, सुजाता सिंह, और मेरी कैबिनेट में 25% विमेन है, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन ये इस बात से बात पूरी नहीं होती है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली बात है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। हम लोग डेडिकेटेड हैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, और आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन गुजरात। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मेरे यहाँ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जब मैंने जाना, पहली बार जब मुख्यमंत्री बना, तो इट वॉज पेनफुल फॉर मी कि गुजरात जैसे राज्य में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का ये हाल है। फिर मेरे यहाँ स्कूल शुरू होती है 15 जून को, जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है 45 डिग्री। यहाँ पर 24 डिग्री में भी गर्मी लगती है, हम 45 डिग्री में वहां रहते हैं। तो 13, 14, 15 जून मैं खुद गांव जाता था, मेरे पूरे सभी मंत्री परिषद के लोग जाते थे, सारे मेरे एमएलए एमपी जाते थे, और हम घर घर जाकर के मैं भिक्षा मांगता था, और लोगों को मैं कहता था कि भिक्षा में आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। और मैं खुद बच्चियों को लेकर के खुद स्कूल ले जाता था, और मैं 100% एनरोलमेंट में सफल हुआ। मेरे व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर 100% में सफल हुआ। वहां पर मैं अटका नहीं, मैं कहीं पर भी जाता था पब्लिक फंक्शन में, तो मुझे गिफ्ट कुछ न कुछ देते रहते हैं लोग, वो गिफ्ट देते थे, उस गिफ्ट को मैं ऑक्शन करता था। जब मैं मुख्यमंत्री पद से गुजरात से बाहर निकला तो उस ऑक्शन में मुझे 78 करोड़ रुपया टोटल मिला। 78 करोड़ रुपया मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए दान दे दिया सरकार को। ये कमिटमेंट है हम लोगों का। तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और मेरी सरकार का एक एजेंडा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां महिलाओं को वोटिंग पाने के लिए सालों तक संघर्ष करने पड़े, आंदोलन चलाने पड़े। डेवलप कंट्रीज को भी विमेन को वोटर राइट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। भारत में विमेन को इलेक्शन में भी 30% रिजर्वेशन है, कोई भी बॉडी होगी 30% महिलाएं कंपलसरी है, यानी इतना हम फॉरवर्ड लुकिंग देश हैं। Farouk Kathwari. I'm Farouk Kathwari, CEO of Ethan Allen, and originally born in Srinagar, Kashmir. So you mentioned about the Jammu and Kashmir floods. So our families, of course, have been tremendously and greatly affected. So my question and actually a request is that the government of India should allow international organizations to come in. There's a tremendous amount of bureaucracy in allowing international organizations to help. पहली बात है कि दुनिया के कई देशों ने अपने आप कश्मीर को मदद पहुंचाई है। जब गुजरात में भूकंप हुआ था, गुजरात में भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने काफी मदद पहुंचाई थी। और ये तो बात सही है कि दुनिया भर में एक अच्छी चीज बनी है कि कहीं पर भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो सभी देश मदद करते ही हैं। जब पाकिस्तान में भूकंप हुआ था तो मैं सबसे पहले, क्योंकि गुजरात हम पड़ोस में ही हैं, तो हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी। तो ये तो मानवता का काम है, सब लोग मानवता का काम करते रहते हैं। I have a quick last question, because I know we're behind schedule, which is, as you come into this job, you've now been there for 4 months. Is there another leader, whether in India or in another country, who you say, that's someone who set a model that I would like to follow in my position as Prime Minister? मैं मानता हूं ऐसा मैं कहूंगा तो कईयों को अन्याय होगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर एक से मुझे कुछ सीखना है। अगर इन्हें मैं एक नाम दूंगा तो 50 लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए मुझे दुनिया में जो भी अनुभवी लोग हैं सबसे कुछ न कुछ सीखना है।
और सबसे सीख करके मेरे देश के लिए मुझे अच्छा करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में जो श्रेष्ठ है वो मुझे मेरे देश में लाना है। Mr. Prime Minister, I learned something from you and how not to answer a question just now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, people would please keep their seats while the Prime Minister exits. Thank you. Thank you.